Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter local governments, and under this chapter we have discussed about the importance of the local government, and then we were seeing the growth of local government in our country, and we have seen that we have this tradition of local government from the ancient time. Though in the modern period, still under the British rule, we have some or the other form of local government in our country. And when we got independence and a new constitution was made, we see that a very important place was not given to the local government bodies in our constitution. It was there was some reason behind it, like there were leaders like Pandit Nehru who were of the opinion that in order to promote or in order to make the country strong, in order to unite the country, it is important that the localism should be suppressed, and that is why local government was not given a proper place in the constitution. B.R. Ambedkar was also of the view that the rural society is not such society which take decisions reasonably, but factions are there. It is the society is caste ridden, so the decisions are not rational. So it was thought that the local government should not be given constitutional status. And then with the passage of time, it was realized that there is need to give constitutional status to the local government, and we see that for that purpose this P.K. Thangan committee was set up by the Union government in the year 1987, and the recommendation of this committee was that there should be constitutional status to the local government. There is need to amend the constitution so that the elections, the periodic elections to local government should be regular, and their function should be specified, and they must be given funds. All these were recommended by this committee, and then we see that the government accepted the recommendation of the P.K. Thangan committee, and accordingly in the year 1989 the central government introduced two constitutional amendments, that was 73rd amendment and 74th amendment. The 73rd constitutional amendment deals with the rural local bodies, which is called Panchayati Raj institutions, and the 74th amendment constitutional amendment was related to urban local bodies, which are called Nagarpalikas, and then what happened that as we know, this local government was a state subject, है ना. जब जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसको स्टेट सब्जेक्ट रखा गया था, तो स्टेट्स अब क्या हुआ कि स्टेट्स जो थे उनको ये कहा गया कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली अपने लॉज में चेंजेस लाने, क्योंकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd और 74th अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली दे हैव टू मेक चेंजेस इन देयर लॉज, एंड फॉर दैट पर्पस दे वर गिवन 1 year टाइम. ठीक है, और इस तरह से उन्होंने स्टेट लॉज बनाया. ठीक है, और 93 से ये हमारा अमेंडमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है. सो टुडे वी विल फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके क्या क्या मेन फीचर्स थे, हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे. अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा वो है फीचर है, वो क्या है, वो है 3 tier स्ट्रक्चर. ठीक है, 3 tier क्या हुआ, 3 लेवल हैं.
ये 3 टियर स्ट्रक्चर जो है वो उसको अडॉप्ट किया गया, और ये जो स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म है पूरी कंट्री में, हर स्टेट में यही सेम स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया, जिसको हम कहते हैं पंचायती राज स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पंचायती राज स्ट्रक्चर। ओके, इसको हम कहते हैं पंचायती राज स्ट्रक्चर। और इसमें हम क्या देखते हैं कि सबसे नीचे में कौन है, इस ये जो 3 टियर स्ट्रक्चर है इसमें सबसे बॉटम में कौन है, बॉटम में जो है वो है विलेज। ठीक है, विलेज लेवल पे क्या है, ग्राम पंचायत। ठीक है, और ग्राम पंचायत के अंदर इट्स नॉट नेसेसरी कि वन ग्राम पंचायत विल कवर सिंगल विलेज ओनली, there can be more than one village under one gram panchayat if the population of the village is low, है ना। तो अगर पॉपुलेशन कम है तो ऐसे कंडीशन में मोर देन वन विलेज कैन बी अंडर वन ग्राम पंचायत। तो सबसे नीचे के लेवल पे जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो ग्राम पंचायत है। ठीक है, अब ग्राम पंचायत के ऊपर जो होता है जिसको हम तालुका कहते हैं या ब्लॉक कहते हैं, इस ब्लॉक या तालुका लेवल पे क्या होता है, पंचायत समिति होती है। ठीक है, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत है और कई सारे विलेजेस मिलकर के एक ब्लॉक बनते हैं या एक तालुका बनता है, और उस ब्लॉक या तालुका के लेवल पे जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, तालुका पंचायत, मंडल पंचायत, पंचायत समिति, बहुत सारे नाम इसके होते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज और भी इम्पोर्टेंट है कि ये बीच वाला जो पार्ट है जिसको टियर है, जिसको हम इंटरमीडिएट टियर कह रहे हैं, ये टियर नहीं भी हो सकता है। अगर सपोज ऐसा है कि स्टेट, छोटे स्टेट हैं, ठीक है, छोटे स्टेट अगर हैं तो वैसी कंडीशन में इस इंटरमीडिएरी लेवल को हटाया जा सकता है। सीधे डायरेक्ट ग्राम पंचायत से हम फर्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे, बॉटम से फर्स्ट पे पहुंच जाएंगे, इस इंटरमीडिएरी लेवल की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर स्टेट बड़ा है तो वहां पर विलेज के ऊपर ब्लॉक या तालुका होते हैं, और इस ब्लॉक या तालुका के लेवल पे ब्लॉक पंचायत होते हैं, पंचायत समिति उसको भी कहते हैं, पंचायत समिति भी कहते हैं, या तालुका पंचायत भी कहते हैं। ठीक है, और सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर होता है जिला या डिस्ट्रिक्ट जिसको हम कहते हैं, जो कि कई सारे ब्लॉक्स के मिलने से बनता है। ठीक है, ये 3 लेवल है, इसी को हम 3 टियर स्ट्रक्चर कहेंगे। 3 टियर, फर्स्ट टियर, सेकेंड टियर, थर्ड टियर। ठीक है, फर्स्ट बॉटम हो गया विलेज, इंटरमीडिएरी हो गया ब्लॉक, एंड एपेक्स हो गया डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद होती है। ठीक है, और या जिला पंचायत भी इसको कहते हैं, और ये जो जिला पंचायत होती है वो उस डिस्ट्रिक्ट के पूरे रूरल एरिया को कवर करती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के पूरे रूरल एरिया को जिला पंचायत जो है वो कवर करती है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि इसमें इस 3 टियर स्ट्रक्चर में ये कहा गया कि जो ग्राम सभा है वो मैंडेटरी है। हर ग्राम पंचायत के लेवल पे ग्राम सभा जो है उसका फॉर्मेशन मैंडेटरी है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा, यहाँ पर पहले हमें इस लेवल को समझ लेना होगा। एक बार हम इसको लिख दे रहे हैं। ठीक है, विलेज पे हुआ तुम्हारा ग्राम पंचायत, तालुका या ब्लॉक लेवल पे हुआ तालुका पंचायत या पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट पे हुआ जिला परिषद। अब इसमें जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं, बॉटम लेवल पे जो ग्राम पंचायत है, इसमें
ग्राम सभा को एकदम कंपल्सरी किया गया है कि ग्राम सभा को तो होना ही होना है। तो ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा जो होती है उसमें एक विलेज के सारे जो एडल्ट विलेजर्स होते हैं, दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। जो भी 18 ईयर्स से अबव के विलेजर्स हैं वो सभी ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। जो भी वोटर्स हैं, है ना, जो भी वोटर्स हैं एक पर्टिकुलर पंचायत एरिया में, वो सभी ग्राम पंचायत के मेंबर होते हैं और ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। और ये जो ग्राम सभा होती है ना, वो इट इज जस्ट लाइक द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द ग्राम पंचायत। जिस ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं, इस ग्राम पंचायत का लेजिस्लेटिव ऑर्गन ग्राम सभा होता है, जो रोल सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट प्ले करती है। द रोल विच इज प्लेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एट द स्टेट लेवल और द पार्लियामेंट एट द सेंट्रल लेवल, दैट सेम रोल इज प्लेड बाय द ग्राम सभा एट द लेवल ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक है, तो इसका लेजिस्लेटिव फंक्शन होता है और जो ग्राम पंचायत होती है ना, वो इसके जो मेंबर्स होते हैं इनको वो इलेक्ट करती है, ग्राम सभा के मेंबर्स। You are not required to go in details of all these things. You just know what is Gram Sabha. That is important for you. Okay, and now we see there are provisions for elections in this Amendment Act also. And what is the provision of election? It is there in the amendment that all the three levels of Panchayati Raj institutions are elected directly by the people. है ना? They are the members of these Panchayati Raj institutions are directly elected by the people, and their tenure is of 5 years. They are elected for 5 years. On every 5 years, there will be election. It is mandatory. The state government has this compulsion to hold the elections on every 5 years. ठीक है, and suppose for any reason, if because of any reason the state government dissolves the panchayat before 5 years, है ना, before the completion of 5 years the panchayat is dissolved by the state government, then in that situation there is very much it is compulsory for the state government to hold this election within 6 months of such dissolution. ठीक है, डिसॉल्व आप कर सकते हैं. इट्स नॉट कि द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिसॉल्व द पंचायत. द स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर to dissolve the panchayats, but it must hold the election for the panchayat within 6 months of the dissolution. जब भी आपने dissolve किया उससे 6 months के अंदर अंदर आपको election करवा देना है. ठीक है, और this was the problem which we were seeing when we were discussing the status of or the condition of local government bodies in India after independence, because they were not given a proper place in the constitution, and that is why we find that their elections were highly irregular. In most of the states their elections were not regular, and that is why it is very much important, if we want that the panchayat should play a prominent role in the governance of the country, then it is very much important that their elections must be regular. And for that purpose this 73rd Amendment Act was passed. ठीक है, और इसमें यही कहा गया कि एक तो डायरेक्ट इलेक्शन होना है और रेगुलर होना है, 5 years पे होना है. डिसॉल्व आप कर सकते हैं, बट डिसॉल्यूशन के बाद जो 6 महीने के अंदर अंदर फ्रेश इलेक्शंस करवाने कंपल्सरी हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट provision of the amendment. And now we come to the second
next, not second, the third important element of the 73rd Amendment Act. In this we see the third act, the third feature is about the reservation. Reservation is very important in this local government bodies. ओके तो ये जो रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, इसमें क्या होता है कि जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स की हम बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत की, पंचायत समिति एंड देन जिला परिषद, इन सब में, या जिला पंचायत, इन सब में क्या होता है कि जितने भी पोस्ट होते हैं, जितने भी पोजीशन होते हैं, उनका जो 1/3 होता है वो वुमेन के लिए रिजर्व है। ठीक है, 1/3 ऑफ ऑल द पोजीशंस, 1/3 of all the position in all panchayat institutions are reserved for women. Okay, this is a very important element, because what we see that this reservation is for women, and other than this we see that the seats are also reserved for scheduled caste and scheduled tribes. ठीक है, उनका जो पॉपुलेशन है किसी भी एरिया में, जहाँ के लिए भी पंचायत इलेक्शंस हो रहे हैं, सपोज फॉर विलेज पंचायत इलेक्शन इज देयर, तो एक जो भी विलेज एरिया को वो कवर करता है, उसमें एससी और एसटी के जो पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन में उनको सीट रिजर्व उनके लिए भी किया गया है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट वुमेन, बट जो एससी और एसटी हैं उनके लिए भी सीट्स रिजर्वेशन के प्रोविजन जो है वो किया गया है 73rd अमेंडमेंट में। इसके अलावे इट इज गिवन टू द स्टेट्स, कि ये स्टेट्स पर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो ओबीसीज होते हैं उनके लिए भी वो रिजर्वेशन की प्रोविजन कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि इस तरह की नीड है तो। ठीक है, मतलब इट इज नॉट गिवन इन द अमेंडमेंट कि ओबीसी के लिए रिजर्वेशन होना है। अगर स्टेट गवर्नमेंट, किसी पर्टिकुलर स्टेट की जो गवर्नमेंट है, इट फील्स दैट देयर इज नीड टू गिव रिजर्वेशन टू ओबीसीज, देन इट कैन मेक प्रोविजंस फॉर देयर रिजर्वेशन ऑल्सो। ठीक है, तो जो अमेंडमेंट में किया गया है वो वुमेन के लिए किया गया है और एससी और एसटी के लिए किया गया है। ठीक है, एससी और एसटी के लिए किया गया है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें हैं जिस पर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज जो हम देख रहे हैं वो क्या है कि ये जो रिजर्वेशन है, इट इज नॉट मेरली फॉर ऑर्डिनरी मेंबर्स, बिकॉज इट इज रिटन दैट ऑल द पोजीशंस, रिजर्वेशन इज फॉर ऑल द पोजीशंस, पोजीशन ऑफ चेयरपर्सन या अध्यक्ष, जिनको हम अध्यक्ष कहते हैं हिंदी में, उनके भी जो पोजीशन है वो भी रिजर्व है। मतलब जितने भी अध्यक्ष हैं एक या फिर सरपंच हैं एक ग्राम पंचायत एरिया में, अगर हम देखें तो जितने भी सरपंच हैं टोटल, उस सरपंच में से क्या होगा कि जो 1/3 होंगे वो वुमेन होंगे। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो पोस्ट का ये रिजर्वेशन है, इट्स नॉट ओनली अबाउट ऑर्डिनरी मेंबर्स। ओके,
एंड इसके अलावा जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिगार्डिंग दिस रिजर्वेशन, वो ये हम देखते हैं कि ये जो रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ सीट्स है, इट इज़ नॉट मेयरली इन द जनरल कैटेगरी। ठीक है, जो सीट्स जनरल कैटेगरी की हैं सिर्फ उसी में ये 1/3 सीट्स नहीं दिए जा रहे हैं वुमेन को, बट दे आर ऑल्सो गिवन रिजर्वेशन विद इन द सीट्स विच आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ओबीसीज। अगर ओबीसी के लिए रिजर्वेशन किया जा रहा है तो जिसके लिए भी रिजर्वेशन होगा, अगर एससी के लिए रिजर्वेशन हो रहा है, एससी के लिए तो होना ही है, जिस कंपल्सरी एससी एंड एसटी के लिए अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, उसमें से 1/3 सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड रहेंगे। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है ना। तो इससे क्या होता है कि जो सीट्स होती हैं ना, वो एक ही साथ जो है वो एक वुमेन कैंडिडेट के लिए भी रिजर्व हो जाती है और शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी ये हो जाती है, रिजर्व हो जाती है। और उसमें क्या होगा कि जो सरपंच होगा वो कौन बनेगा उस केस में, एक दलित वुमेन या आदिवासी वुमेन उस केस में सरपंच बनती है। ठीक है, इसको वी कैन अंडरस्टैंड इट विथ एन एग्जाम्पल। सपोज किसी ग्राम पंचायत में 150 सीट्स हैं। ठीक है, अगर टोटल है और इसमें से हम क्या देखते हैं, या फिर इसको हम 15 ही मानते हैं क्योंकि 150 विल बी टू मच। ठीक है, 150 इतना तो पंच होते ही नहीं है, अगर इसको ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए हम इसको 15 ही मान लेते हैं। ठीक है, अब इस 15 में क्या है कि जो 6 सीट्स हैं दैट इज रिजर्व फॉर एससी। ठीक है, और 3 सीट्स जो है वो एसटी के लिए रिजर्व है। ओके, और फिर बाकी की जो 6 सीट है वो जनरल के लिए। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे कि कैसे होगा। 15 सीट है, 15 में से 1/3 जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व होगा, यानी कि 15 का 1/3 क्या हुआ, 5, है ना। तो 5 सीट्स विल बी रिजर्व फॉर वुमेन। अब ये कैसे वुमेन का रिजर्वेशन कैसे होगा, 6 का फिर 1/3 हम निकालेंगे, यानी कि 2, है ना। 2 सीट्स जो है वो एससी वुमेन से भरेगा, 2 सीट जो है वो एसटी वुमेन से भरेगा और 1 सीट जो है वो जनरल, है ना। तो अगर 15 है टोटल पंच जिनको इलेक्ट होना है और इस 15 टोटल में से 6 एससी के लिए और 3 एसटी के लिए रिजर्व है और 1/3 सीट हम कह रहे हैं कि औरतों के लिए इसको रिजर्व होना कंपल्सरी है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है कि सब में, जैसे अगर एससी के लिए जितने भी सीट्स हैं उसका 1/3 वुमेन को जाएगा, एसटी के लिए जितने भी सीट्स रिजर्व है उसका 1/3 वुमेन को जाएगा। इसी तरह से जनरल के लिए जितने भी सीट्स हैं बच रहे हैं उसका 1/3 जो है वो वुमेन को जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ वुमेन रिजर्वेशन के सिस्टम को अडॉप्ट किया गया इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ओके, अब हम दूसरी चीज पर आते हैं और उसको हम कहते हैं क्या है, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट मतलब ये हो रहा है ना कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया है और फेडरलिज्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, अब ये जो सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिस्ट से है। स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स रखे गए हैं जिस पर कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। सेंट्रल लिस्ट में यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिस पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। इसी तरह से कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन पर कानून दोनों ही बना सकते हैं, सेंट्रल भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है, और अगर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंटर के ही कानून को माना जाता है ना। तो ये हम जानते हैं। अब हम क्या देखते हैं
कि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो लिस्ट है, जिसको हम स्टेट लिस्ट कह रहे हैं, स्टेट लिस्ट में क्या किया गया है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, 29 सब्जेक्ट्स हैं स्टेट लिस्ट के। स्टेट लिस्ट में 29 सब्जेक्ट्स हैं जो कि जिनको 11th शेड्यूल में डाल दिया गया है थ्रू दिस अमेंडमेंट। ये जो 73rd अमेंडमेंट हुआ, इस अमेंडमेंट से ये 29 सब्जेक्ट्स जो कि पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करते थे, इनको डाल दिया गया 11th शेड्यूल में। ठीक है, अब ये जो 11th शेड्यूल में डाला गया, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अभी ये स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट को इनको ट्रांसफर कर ही देना, ये कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इन 29 सब्जेक्ट्स को धीरे धीरे ट्रांसफर करे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि जब उनको लॉ बनाने का कुछ पावर मिलेगा तभी तो वो काम कर सकेंगे। तो इन ऑर्डर टू मेक देम पावरफुल, दिस अरेंजमेंट इज डन कि स्टेट लिस्ट से 29 सब्जेक्ट्स को 11th शेड्यूल में डाल करके स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा गया है कि वो इन सब्जेक्ट्स को धीरे धीरे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसफर करे। ठीक है, और इसमें ये जो 29 सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं? मोस्टली वही सब्जेक्ट्स हैं जो कि डेवलपमेंट और वेलफेयर फंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, लोकल नेचर वाले जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि डेवलपमेंट और वेलफेयर जैसे मैटर से रिलेटेड हैं, वो सारे सब्जेक्ट जो हैं वो इस लिस्ट में हमको दिखते हैं। जैसे सपोज हम लोग उनके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं इस 29 सब्जेक्ट्स में। जैसे एग्रीकल्चर गांव से ही जुड़ी होती है, लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। विच एवर डिसीजन इज गोइंग टू बी मेड दैट शुड बी डन बाय द पीपल। ओके, एंड देन इसी तरह से माइनर इरिगेशन के मैटर है, वाटर मैनेजमेंट है, वाटर शेड प्रोग्राम है, ये भी लोगों के इन्वॉल्वमेंट से इस तरह के प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे अगर लोगों का इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो इसलिए इसी तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको इसमें रखा गया है 29 सब्जेक्ट्स में। रोड्स हैं, रूरल हाउसिंग है, ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, देन रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है। जितने भी प्रोग्राम जो भी डेवलपमेंट और वेलफेयर से रिलेटेड है वो सारे इसमें ही रखे गए हैं। ठीक है, और इट्स नॉट कि ये सारे सब्जेक्ट्स मिल गए हैं पंचायती राज को, नहीं, अभी मिले नहीं हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इट शुड ट्रांसफर दीज सब्जेक्ट्स टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ये कंपल्सरी नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि ये सारे के सारे सब्जेक्ट वो ट्रांसफर करें। वो डिसाइड करेगी कि इस 29 में से कितने वो लोकल बॉडीज को दे, 2 दे, 4 दे, 10 दे, 20 दे, ये डिपेंड करता है पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट पे। और इसके लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 243G। ठीक है, यह है आर्टिकल 243G, जिसमें यह कहा गया है कि पावर्स, authority and responsibilities of panchayats, the legislature of a state may by law endow the panchayat with such powers and authority with respect to the matters listed in the 11th schedule। ठीक है, जो मैटर्स 11th शेड्यूल्ड में लिस्टेड है उनके रिगार्डिंग जो है स्टेट की लेजिस्लेचर जो है वो पंचायत को पावर ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स। इसके बाद जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है हमारे इसके बारे में, लोकल गवर्नमेंट के बारे में, वो ये है कि कुछ ऐसे हमारे एरियाज हैं हमारे कंट्री में विच आर इनहैबिटेड बाय द आदिवासी पॉपुलेशन,
और we all know that the Adivasi population has a very distinct culture and they don't want any kind of interference in their culture, in their lifestyle, है ना। तो ये क्या किया गया कि ये जो 73rd अमेंडमेंट है वो तो बिल्कुल बॉटम लेवल के इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो इसमें ये हुआ कि कुछ एरियाज जो कि आदिवासी पॉपुलेशन जहाँ पर रहते हैं उसको ये कहा गया कि वहाँ पर 73rd अमेंडमेंट जो है वो लागू नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो अपने आप को खुद ही अपने हिसाब से दे वांट टू रेगुलेट देमसेल्व्स इन देयर ओन वे। ठीक है। और उसके बाद 1996 में एक एक्ट जो था वो पास किया गया जिसमें ये कहा गया कि जो पंचायत के जो लॉज हैं उसको एक्सटेंड किया जा सकता है इन ट्राइबल एरियाज में भी। ठीक है। और यहाँ पर हम इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि इस जो आदिवासी कम्युनिटी है उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी डिस्टिंक्टिवनेस जो है, उनके अंदर जो यूनिकनेस है उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या प्रोविजंस किए गए हैं। वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास।